Now we move towards question number 17. In question number 17, two sets are given A and B. And the question is, show that A delta B is equal to A union B minus A intersection B. According to this statement, left hand side is equal to right hand side. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इस बात को प्रूव करने के लिए हमें दोनों साइड सॉल्व करने पड़ेंगे. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी मेक टू कॉलम. इन फर्स्ट कॉलम वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड and second column we solve right hand side. In left hand side we solve A delta B. A delta B means symmetric difference of A and B. The set of elements of A and B which are not common. A के सेट लिखेंगे, B के सेट लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन नहीं है वो सेट आ जाएगा symmetric difference of A and B which are 1, 3, 6, 8. Okay, now we solve right hand side. Right hand side में आपके पास है A union B minus A intersection B. First we find A union B. A union B means all elements of A and B. A के सेट हैं 1, 2, 3, 4. उसको यूनियन करेंगे 2, 4, 6, 8 के साथ, तो सेट आएगा आपके पास A union B 1, 2, 3, 4, 6, 8. Okay, now we find A intersection B. A intersection B means the common elements of A and B. Common elements A और B के हैं 2 and 4. Now we find A union B minus A intersection B. A union B हमारे पास सेट आए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8 and A intersection B is here 2 and 4. माइनस करने पर A यूनियन B के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1, 3, 6, 8. वी हैव नोटिस हियर के A डेल्टा B और A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B आर इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence we have shown A delta B is equals to A union B minus A intersection B. Similarly, you can solve question number 18 and 19 yourself. And now we move towards De Morgan's laws. De Morgan laws क्या होते हैं? If you have a universal set and A and B are the subset of U, then De Morgan laws are, the two statements are said to be De Morgan laws. First statement, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. And the second statement is A intersection B is equal to A complement union B complement. These two statements are called De Morgan laws. ठीक है. Now we move towards verify De Morgan laws. Let universal set is given here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A set given है 1, 3, 5, 7. And B is given 3, 4, 5, 6. We have to verify De Morgan's laws. De Morgan laws दो स्टेटमेंट होते हैं जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. फर्स्ट स्टेटमेंट है A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. वन बाय वन दोनों को सॉल्व करेंगे. फॉर दिस वी कन्वर्ट इनटू टू कॉलम्स. हम पेज को कन्वर्ट करेंगे दो कॉलम्स में. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फर्स्ट कॉलम में एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे सेकंड कॉलम में. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट वी फाइंड A यूनियन B विच इज इक्वल टू सेट है A है 1, 3, 5, 7 यूनियन 3, 4, 5, 6. दोनों का यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B which are here 1, 3, 4, 5, 6, 7. Now we find A union B whole complement which is equal to U minus A union B. यानी A union B का सेट जो आया है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे. माइनस करने पे we have 2. We have remain 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus 1, 3, 4, 5. सारे एलिमेंट माइनस करने पर we have only 2. A union B whole complement is equal to
2। ये एक सेट हमारे पास आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से आप ए के सेट माइनस करेंगे, 1 3 5 7 यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सेट क्या बचेगा, 2 4 6। A complement is equals to 2 4 6. Now we find B complement. B complement is equal to U minus B. U minus B यूनिवर्सल सेट में से B के सेट माइनस करेंगे, we will get 1 2 7. तो B complement is equals to 1 2 7. Now we find A complement इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आया था और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 2 7। दोनों में कॉमन क्या है, 2। दोनों सेट इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के भी राइट हैंड साइड। We have verified A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. Similarly, you can solve second statement, which is here A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. I hope you can do yourself and do question number 20. Same method से आप question number 20 भी करेंगे इसी को फॉलो करते हुए। नाउ वी मूव टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। यहाँ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, जिसको हम स्टेट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। लेट वी हैव ए एंड बी सेट्स, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमेशा कोई सा भी सेट होगा हमारे पास, कोई से भी सेट है ए और बी, तो उनका ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी अगर कोई से भी सेट है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। बट वी हैव 3 सेट्स। इफ वी हैव 3 सेट्स, then A union B union C in bracket is equal to A union B in bracket union C. This property is said to be associative property of union. यानी अगर आपके पास 3 सेट्स हैं तो A union B union C इक्वल होगा A union B union C के। इसको हम आगे एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इफ वी हैव 3 सेट्स ए बी एंड सी, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। यानी ये स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट इन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी के, अगर आपके पास 3 सेट्स हैं। फिर फिफ्थ आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये भी आपके पास 3 सेट होंगे तो ये प्रॉपर्टीज होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इन ब्रैकेट। ये दोनों स्टेटमेंट जब सही होंगे ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। वेरीफाई करना है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो 1 बाय 1 हम दोनों का करेंगे। पार्ट ए है सेट ए इज गिवन हेयर 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज हेयर 3 5 7 9। तो 1 बाय 1 पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू
B यूनियन A। वेरीफाई करने के लिए दो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, एक कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और सेकंड में राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका A यूनियन B यानी A और B के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 7 9 all elements of A and B are here. Now we find in right hand side B union A, B और U A के यूनियन सेट फाइंड करेंगे। 3 5 7 9 1 2 3 4 5 का सेट सेट जो है हमारी अरेंजमेंट प्रॉपर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों सेट इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के। Hence we can say we have verified here. We can solve commutative property of intersection. इसमें भी आप इसी तरह से A intersection B is equal to B intersection A find करेंगे, स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। The both sets are same, then we can say hence we can verify. We have verified here. ठीक है। Now we move towards question number 22. Question number 22 is verify the following properties for the sets given below. Sets आपके पास A, B, C given है। A set है 1 2 3 4 5 and B set है 2 4 6 8 and C set is here 4 8 10 12 and we have to verify associative property of union and intersection. Second है distributive property of union over intersection and the third is distributive property of intersection over union. तो मैं यहाँ थर्ड वाला करा रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड आप खुद कर सकते हैं। The third part is here distributive property of intersection over union equal होता है A intersection B union C in bracket is equals to A intersection B in bracket union A intersection C. Similarly, we can convert it into two columns. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम A इंटरसेक्शन B यूनियन C सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको पहले B यूनियन C सॉल्व करना पड़ेगा। B और C का यूनियन यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ B एंड C। B का सेट है 2 4 6 8 एंड C सेट इज हियर 4 8 10 12। दोनों का यूनियन क्या होगा 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है। नाउ वी फाइंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C यानी जो B यूनियन C का सेट आया है इसके साथ A का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। A सेट है 1 2 3 4 5 और B यूनियन C अभी हमारे पास आया है 2 4 6 8 10 12। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 2 and 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया, सेट आया है 2 and 4 का। नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A इंटरसेक्शन B। A और B का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 A सेट है, B सेट है 2 4 6 8। दोनों का इंटरसेक्शन 2 and 4। इसका इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ A। नाउ वी फाइंड A इंटरसेक्शन C। A और C का इंटरसेक्शन A सेट है 1 2 3 4 5 एंड B सेट है 4 8 10 एंड 12। दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स क्या है 4। एंड नाउ वी फाइंड A इंटरसेक्शन B इन ब्रैकेट यूनियन A इंटरसेक्शन C इन ब्रैकेट यानी 2 4 एंड यूनियन 4। 2 और 4 और यूनियन इसका दोनों सेट का यूनियन क्या होगा 2 and 4। बोथ साइड आर सेम 2 4 2 4। Hence we have said left hand side equal है right hand side. This property has proved now.